सास बहू के गिरोह ने लूटा था पिस्टल की नोक पर डॉक्टर शिवानी अरोड़ा का घर। 148 शास्त्री नगर की 6 जनवरी की घटना। कोट खालसा का रहने वाला है परिवार, 4 गिरफ्तार, कई फरार। चोरी का सोना पिघल गया, गोरखनाथ ढलाई वाले की हो सकती है गिरफ्तारी। डीसीपी डिटेक्टिव मुख्तार सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौजूदा थे आला अधिकारी। एक डॉक्टर शिवांगी अरोड़ा जी ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਪਿਸਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਔਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਏਸੀਪੀ ਨਾਰਥ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ SHO ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਆਈਏ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ PCR ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੁਟੇਜ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਲੜਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਮੀ ਏਲੀਅਸ ਅਮੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ 65,000 ਰੁਪਈਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 2 ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ TT ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਢਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ 208 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ TT ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। TT ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸੱਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 10-12 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਨੌਕਰਾਣੀ, ਉਹ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। CCTV ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੈਤੋਂ 'ਚ ਹੈ, ਕੁਛ NDPS ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਕੜਿਆ ਗਿਆ ਲੜਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਾਨ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਦਾਰ ਹੋਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ NDPS ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸੇ ਇਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸਕੂਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ 208 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਘਲਾਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਘਲਾਇਆ
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 65000 ਰੁਪਈਆ, ਇੱਕ 12 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇ 2 ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਸਫਾ ਮਿਸਲ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਇਹ ਢਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਕੋਟ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ। ठीक है जी। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम एक कहानी बताते हैं, कहानी एक ऐसी जो भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों के साथ घटी। और ये कहानी डॉक्टर शिवांगी जी हैं, ये रहती हैं यहाँ पे 148 है शास्त्री नगर दसौंधा रोड। तो यहाँ पे कुछ लोग जाते हैं और बताते हैं कि उनके दांत में दर्द है, और वहाँ पे फिर दांत में दर्द और किस तरह उनको पिस्टल के नोक पे पूरे परिवार को काबू कर लिया जाता है, और उसके बाद में लूट होती है लाखों की। तो आज ये लूट सुलझा ली गई है, देख सकते हैं आप। ये सील हुए हैं, ये हाथों में इनके ये डिब्बे हैं, इसमें लूट का सामान है। और सबसे बड़ी बात, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और ये जो गैंग है महिलाओं का गैंग, जी हाँ, नए साल पे 2021 में पहला खुलासा, 2021 का पहला खुलासा, महिलाओं का गैंग। और इस गैंग में दविंदर कौर देवी पत्नी चरणजीत सिंह वासी 22 नंबर फाटक कृष्णा नगर कोट खालसा, दलजीत कौर उर्फ विक्की पत्नी दिलदार सिंह वासी 22 नंबर फाटक कृष्णा नगर कोट खालसा, शम्मी उर्फ अमन उर्फ अम्मू पुत्र प्रेम कुमारी वासी 2342 गली तेजा सिंह वाली इस्लामाबाद, और गुरप्रीत सिंह उर्फ फतेह पुत्र गुरवेज सिंह वासी मकान नंबर 27 गली नंबर 3 सेवा सिंह राम तीरथ रोड अमृतसर को गिरफ्तार किया गया है। और ये गिरफ्तारी हुई डॉक्टर शिवांगी अरोड़ा के घर लूटे गए पैसों को लेकर। 22,000 रुपये दलजीत कौर के पास से, 13,000 रुपये शम्मी कुमार के पास है, 17,000 रुपये और मिले हैं, और देसी पिस्तौल 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। तो गिरफ्तारी की गई है। और सबसे बड़ी बात ये गिरोह जो है सास बहू की और साजिश, ये सास बहू और साजिश थी, और सास भी जिम्मेदार बहू भी जिम्मेदार। तो ये जो किरदार है ये दविंदर कौर का है, दविंदर कौर, और इसमें जो ट्विस्ट है दलजीत कौर, और उसके बाद में दिलदार सिंह, ये 3 लोग हैं। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि ये गिरोह ऐसा गिरोह है कि जो पहले नौकरी करता है, ऐसे लोगों को तलाश करता है जिनको घर में काम करने के लिए नौकरी पहले हासिल करती हैं, उसके बाद में उसे निशानदेही करती है। ऐसे कई घरों की निशानदेही उन्होंने की है। और लाइव भारत ने इस बारे में जब बात की तो हमें यहाँ के जो आज कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बता दें कि पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल के आदेशों पर आज मुखविंदर सिंह भुल्लर PPC DCP डिटेक्टिव, इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और लाइव भारत ने इनसे सवाल किया था, और सवाल यही किया था कि ऐसे लोगों का ये कोई प्लानिंग तो नहीं, क्योंकि टीवी चैनलों में भी ऐसी प्लानिंग दिखाई जाती है कि नौकरी के बहाने फिर सेंध लगाई जाती है। और जिस तरह डॉक्टर शिवांगी का परिवार उस हाल में रहा, पिस्टल की नोक में पूरा परिवार सहमा रहा, लूट हुई, तो मैं समझता हूँ जो उस परिवार पे जो मानसिक तौर पे जो उन्हें यातना सहनी पड़ी है, मैं समझता हूँ कि उसकी भरपाई कौन करेगा। फिलहाल पुलिस भरपाई कर रही है, 65,000 रुपये बरामद कर लिया है, और इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और हम आपको बताएं 12 बोर का पिस्टल भी बरामद है, और दातर रही है। और ऐसे लोग हैं, एक गोरखनाथ नाम का एक व्यक्ति है जो शायद गोरख धंधा करता होगा, क्योंकि उसने लूट का जो सोना है वो कहीं ना कहीं उसको गला दिया है। तो इस गोरखनाथ के खिलाफ भी अगर पुलिस को लगा तो कार्रवाई होगी। ये अलग बात है कि सोना बेचने वाला और सोना खरीदने वाला कितना जिम्मेदार है। एक ऐसे हमारे पास भी FIR है जिसमें शहर के एक नामी गिरामी सोना खरीदने वाले ज्वेलर्स का नाम है, लेकिन उसके खिलाफ कोई FIR नहीं हुई और चोरी का सोना उसने खरीदा। ये बात हम अगली कड़ी में स्पेशल बताएंगे। फिलहाल आज जिस तरह से आज यहाँ पे कहा गया है, और यहाँ के जो DCP डिटेक्टिव है MS भुल्लर, उन्होंने जो आज कहा है कि हम जल्द गिरफ्तार करेंगे, और गोरखनाथ का हाथ इस गोरख धंधे में हुआ तो उन्हें भी गिरफ्तारी होगी। तो फिलहाल ये बड़ी कामयाबी है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो इलाका है, ये इलाका है सारा जो इस्लामाबाद के कोट खालसा, तो कोट खालसा की महिलाओं ने ये कारनामा किया है, और सास बहू और साजिश इस पूरे घटनाक्रम में ये कहा भी रहा है। और डॉक्टर शिवांगी अरोड़ा के परिवार को इन्होंने किया था अपने
काबू और एक साजिश के तहत। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम पहुंचे हैं यहाँ पे और डॉक्टर शिवांगी अरोड़ा जी के घर पे 148 है शास्त्री नगर। पहले हम आपको सुरक्षा व्यवस्था दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे आज यहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं लेके जा सकते, ऐसा सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन उस दिन सुरक्षा व्यवस्था क्या रही होगी, किस प्लानिंग से वहाँ पे आए थे लोग, ये तो वही जाने जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि ये कोठी है और इस कोठी में रहने वाली डॉक्टर शिवांगी के अरोड़ा, इन्होंने अपने शायद अब वो दरवाज़ा बिल्कुल सिक्योरिटी इतनी है और क्या करें, क्योंकि इनके पास ही ये लोग आए थे और ये लोग आके यहाँ पर उन्होंने कहा था कि दांत का चेकअप करवाना है, उसके बाद में लूट का शिकार बना दिया। तो पूरे परिवार ने बात तो की, लेकिन ऑफ कैमरे के आगे की डर गया है। और डर ऐसा गया है क्योंकि पिस्तौल के नोक पे एक परिवार घंटों तक बंधक बना रहा। और हम समझते हैं कि इतनी उनकी प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग थी सास बहू और साजिश की। सास बहू उसमें गिरफ्तार हुई हैं और वो महिलाएं, ऐसे बड़े घरों को ऐसी महिलाएं निशाना बना रही हैं जो स्लम इलाकों में रहती हैं, लेकिन उनका जो तरीका है, उनकी जो वारदात करने की स्टाइल है, वो फिल्मी है, पूरी फिल्मी स्टाइल है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जिन घरों को अपना शिकार बनाना होता है, उन घरों में पहले वो नौकरी के बहाने एंटर करती हैं और नौकरी के बहाने उसके बाद में फिर वो अपने साजिश को अंजाम देती हैं। तो ऐसे ही हम बात करें यहाँ पे दिलदार जिया, दविंदर कौर और चरणजीत सिंह, इनके पति का नाम है, दलजीत कौर और दिलदार। तो ऐसे 4 किरदार हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। 65,000 रुपये मिले हैं। एक सुनियारा जो सोना गलाता था वो भी मिला है, ढुलाई का काम करता था। फिलहाल डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन सबसे बड़ी बात की चुनौती है ऐसे लोगों पे जो स्लम इलाकों में रह के और ऐसी बड़ी बड़ी साजिशें करते हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उन्हें ये इरादा टेलीविज़न के स्क्रिप्ट देख के भी आता हो, लेकिन ये पढ़ी लिखी कम है और नशे का काम करती हैं। जी हाँ, तो नशे का काम करने वाले ऐसे गिरोह ने इस घर को निशाना बनाया, तो जिसे हम आपको बता रहे हैं। और मरीज बन के आया डॉक्टर के घर और लूट कर ले गया। 4 लोग आज गिरफ्तार हुए हैं। तो ये स्पेशल खबर थी लाइव भारत पर। अब देख रहे हैं लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। बेऔलाद जोड़िਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਮੈਡੀਕੋਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। गर्भ ਦਾ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ। चौदह से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं, क्योंकि उनका खाना पीना, रहन सहन, इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और बेसिकली आज की डेट में 50 से 60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे, वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मैडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर।